Hello everyone. So here we have a question from JEE Advanced 2021. The question is on matrices, multiplication of matrices, inverse, determinant of matrices. इस पे पूरा question based है. So let's start with the question. The question is for any 3 cross 3 matrix M. This symbol denotes the determinant of M. ये तो हमको पता ही है. कोई भी matrix के लिए vertical lines we use for symbol. उनको define कर दिया उसने. ठीक है. And we have some matrices here. It is given that Q is a non-singular matrix of order 3 cross 3, then which of the following is true? आप multiple correct answer. You can see we have the options. आपको एक एक options check करना है. ठीक है. तो let's start solving this. तो first option देखो. In the first option you have to check कि F is P into E into P. मतलब ये जो matrix P है, this matrix F इसका P into P into P है. ठीक है. और सेकंड आपको फिर चेक करना है पी स्क्वायर का वैल्यू 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. पी स्क्वायर इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपको ये चेक करना है. ठीक है. तो यू कैन इजीली चेक दिस. इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं. इसमें आप क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पीई. ठीक है. पीई चेक कर लेते हैं. सो व्हाट इज पीई? दिस इज 1 0 0 0 0 1 0 1 0. ये आपका पी. और ये ई मैट्रिक्स, दिस इज 1 2 8, this is 2 3 13 and this is 3 4 18. ये हमारे पास P मैट्रिक्स आ गया. P into E हो गया. ठीक है. This is P into E. So what is P into E matrix? This is, you can see now. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, how to multiply two matrices? Row to column. Row 1 to column 1. मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. You can see यहाँ सब 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा. So this is 1. 1 into 1, 0 into 2, 8 into 0. Similarly, first row, second column. So you can see 1 into 2, बाकी सब 0. So this is 2. Similarly, 1 into this, 1, बाकी सब 0 हो जाएगा, 1 into 3 हो जाएगा. ठीक है. I am quickly going through this because I hope you know how to multiply the matrices. ठीक है. So this is, if I multiply this with this, तो यहाँ पे बस एक 1 से मल्टीप्लाई होगा तो it will become 8. फिर जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड कॉलम से, तो यू कैन सी दिस विल बिकम 13. फिर आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम से, तो दिस इज 18. देखिए बाकी टर्म तो 0 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 हो जाएंगे, राइट. सिमिलरली इफ यू मल्टीप्लाई दिस लास्ट रो विद दिस कॉलम, तो ये मिडिल टर्म मल्टीप्लाई होगा बिकॉज यहाँ मिडिल टर्म में 1 है, तो दिस इज 2. फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 3. एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस विल बिकम 4. आई होप दिस इज क्लियर. Now we have to multiply PE with P again. So this is, if you multiply this matrix with P again, so what is P? This is 1 0 0, this is 0 0 1 and this is 0 1 0. हमने क्या किया, फिर से इसको PE मैट्रिक्स को P से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. So now again let's multiply this. You can see if you multiply this first row with first column, this will become 1. If you multiply this with this, so it will become 3. If you multiply this with this will become 2. So you can see this is 1 3 2. Now similarly second row first column 8 into 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे. If you multiply this second row first column, so it will become 18, right. 18 के corresponding multiplication आएगा. If you multiply this with this last third column, तो ये 8 into 0 13 into 1, तो ये हो जाएगा आपका 13, और ये 18 into 0 will become 0. And now similarly the last, if you multiply this and this, you can see this is 2. If you multiply this row and this column, that is it will be 4, and this is, you can see if you multiply this with this will become 3. So this is the matrix PEP. तो ये आपका आ गया, देखो P into E P, PEP, ये आपका मैट्रिक्स है PEP. So you can see this is PEP we have got. अब इसको ध्यान से देखो, this is 1 3 2 18 8 18 13 and this is 2 4 3, मतलब ये बराबर है. तो you can see PEP is equal to F, मतलब ये तो सही है. ठीक है. you can see simple multiplication है, you can do this. अब सेकंड आपको क्या चेक करना है इसमें, P स्क्वायर. आपको P स्क्वायर चेक करना है, मतलब P को P से मल्टीप्लाई करके देख लो. तो व्हाट इज P स्क्वायर? अगेन you can check this is 1 0 0, this is P 0 0 1 and 0 1 0. ये P into P, so this is 1 0 0 0 0 1 and this is 0 1 0. ये हो गया आपका P स्क्वायर. अब इसको आप ओपन करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं P स्क्वायर, राइट. P स्क्वायर क्या हो गया, ये वाले. So if you multiply this
this will become 1 0 0. You can check this. बाकी सब टर्म्स यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, बाकी 0 हो जाएगा. Similarly, if you multiply this and this will be 0. If you multiply this and this will become second way, na? This is 1 and this is second row and third column. This will become 0. And similarly, last term you can check this. For third row, first column 0, third row, second column, this will be 0, and third row, third column, you can see middle term multiply हो जाएंगे, this will be 1. And you can see ये p square हो गया, p square is equal to this matrix. This is, you can clearly see this is an identity matrix which you have to prove. मतलब ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे आप करना है, यू कैन चेक दिस, राइट. अब ऑप्शन ए आपके सामने, वो हमने क्लियरली सॉल्व कर दिया. तो इसमें देखो पार्शियल मार्क तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशन. तो ऑप्शन ए आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल चेक द अदर ऑप्शंस. अब अदर ऑप्शंस पे फोकस करते हैं. नाउ इन दिस ऑप्शन बी यू हैव टू चेक दैट a into q plus p f q inverse डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस. देखो इन जनरल ऐसा नहीं होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b. ये इन जनरल ट्रू नहीं होता है. ठीक है, हर मैट्रिक्स से ट्रू नहीं होता है, बट इट मे हैपन फॉर सम मैट्रिसेस. तो ऐसा नहीं है कि आपने बस इसको देख के बोल दिया कि दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b इज नॉट करेक्ट या फिर दिस इज करेक्ट. आपको मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर दीज मैट्रिसेस व्हिच आर गिवन टू यू. ठीक है, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होता है. ठीक है, सो नाउ सी वी कैन सी, अब इसको मैनिपुलेट करके देखेंगे. ठीक है, सो नाउ देखो जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस के लिए, थोड़ा सा लॉजिकली आपको ऐसा बताया जाता है कि आपने जो सॉल्व किया है वी कैन यूज दैट थिंग इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. सो आप ध्यान से देखो, आपको ये प्रूव करवाया पहले क्वेश्चन में कि दैट अदरवाइज तो आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते. हाउ कैन यू ऑब्जर्व दैट p into p is equal to p into e into p is equal to f? no one can observe this. ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन में इसीलिए प्रूव करा है सो दैट यू कैन यूज दिस थिंग इन द अदर पार्ट्स. दैट इज द वे द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड. ठीक है, तो अदरवाइज ऐसे नो वन विल गिव यू अ क्वेश्चन एब्रप्टली कि आप ये ऑब्जर्व कर लोगे p into p is p e p is equal to f, right? So we have proved in the first part, now we can easily use in the second part. अब इसको हम यूज कर सकते हैं कैसे, देखो if I talk about this LHS, हमने ये प्रूव किया. देखो F is equal to P E P, इसको अगर हम पुट कर दें, so what is E into Q plus P F Q inverse, sorry P Q inverse. ठीक है, so now see if I put this will be equal to इसका डिटर्मिनेंट will be equal to determinant of EQ plus P, what is F? PEP. So this is PEP. ठीक है, और ये Q inverse, sorry this is Q inverse और ये डिटर्मिनेंट. तो हमने क्या किया, F का वैल्यू PEP हमने यहाँ पे पुट कर दिया. Now you see here what is this? This is determinant of EQ plus P square. P into P मतलब P स्क्वायर, और हमने ऑलरेडी बोल दिया है P स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रूव किया, देखो P स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो देखो फर्स्ट पार्ट को कैसे ब्यूटीफुली हम यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे. सो यू कैन सी दिस इज आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स विल बी द सेम मैट्रिक्स. सो आई कैन से दिस इज E P Q इनवर्स. करेक्ट है. नाउ यू सी इफ आई राइट दिस इज, यू कैन से दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ E into Q plus P Q inverse. ठीक है, now if you have determinant of EP, now this is always true if you have A and B some square matrices of same order, 3 cross 3 matrix. You can see this is determinant of A into determinant of B. A and B are square matrices of M cross N. दोनों क्या हैं, square matrices हैं same order के. So you can always say determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. So you can see ये सब matrix, this is a matrix of order 3 cross 3. This is also a matrix of order 3 cross 3. तो क्वेश्चन में गिवन ही है. So now you see what is this, determinant of E into determinant of Q plus P Q inverse. करेक्ट, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया. And now just observe, see आपको Q मैट्रिक्स तो पता ही नहीं है, तो obviously you cannot find this value, but you can easily find determinant of E.
तो हम वो चेक करते हैं पहले कि व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ई का वैल्यू, ठीक है। एंड नाउ सी इफ यू जस्ट ऑब्जर्व डिटरमिनेंट ऑफ ई, सो इसका एक तो आप ओपन करके सॉल्व कर सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ई आपको मिल ही जाएगा। अदरवाइज अगर थोड़ा आप ऑब्जर्व करोगे तो हम वैल्यूज को अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ई, दिस इज यू कैन सी इफ आई अप्लाई, ये डिटरमिनेंट ऑफ ई के लिए हमने क्या कर दिया, इसको ऐसा डिटरमिनेंट बना दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ई, ठीक है। एंड नाउ इफ आई अप्लाई सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस दीस टर्म्स। तो हमने क्या किया, इफ आई अप्लाई लेट्स से R3 goes to I am trying to simplify this, so this is R3 minus you can say 3R2 minus 2R1। इस पर 8 पे फोकस करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सम 8 हो जाएगा, उसका डिफरेंस ले लिया। तो यू कैन सी दिस इज 1 2 3, दिस इज 2 3 4 एंड दिस इज, अब आप ध्यान से देखना, R3 goes to R3 minus 2R2 minus 2R1, so this will become 6 minus 2 मतलब 8 minus 8 मतलब 0, so this will become 0। सिमिलरली देखो उसको 6, ये होगा आपका 9 plus 4 मतलब 13 minus 13 मतलब फिर से 0, and similarly you can see this is 12 minus 8 12 minus 6 that is 18 minus 18 मतलब 0। अदरवाइज चलो ये क्लिक नहीं भी होता है तो you know how to solve a determinant, ठीक है। तो यू कैन सी हियर दिस डिटरमिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ ई, सो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ई, डिटरमिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ये ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज अगर ये नहीं भी क्लिक होता है यू कैन इजीली फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, राइट। आप 3x3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू नो दिस, राइट। सो नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट डिटरमिनेंट ऑफ ई इज 0। सो व्हाट इज दिस, दिस यू कैन सी दिस डिटरमिनेंट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 0। तो हमने ये प्रूव कर लिया है कि ये जो साइड है LHS दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट। नाउ वी विल फोकस ऑन दिस। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर से वही देखो, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि दिस टर्म इज इक्वल टू 0। नाउ इफ आई अप्लाई द सेम थिंग, हमने क्या किया, फिर से f का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई टेक द RHS पार्ट, इफ आई टेक द RHS पार्ट यू कैन क्लियरली सी we have RHS में we have determinant of EQ plus determinant of P, F क्या है PEP और ये क्या है Q inverse। and now you can clearly see exactly same logic, so this is determinant of EQ plus P square, identity matrix into any matrix will be same matrix, so this is E P Q inverse। And now you can see here this I can say ये हमारा अच्छे सॉल्व करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ E into determinant of Q plus determinant of E, determinant of P, determinant of Q inverse, correct है। And now see if this is true, that means मतलब you can see determinant of A to B is equal to determinant of AB, तो वो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, all are of same order 3x3। so now you see determinant of E तो 0 ही है, that means this is equal to 0, that means this is also 0, this is also 0। ये फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर ही लिया 0, सेकंड पार्ट में हमने ये वाला पार्ट भी प्रूव कर लिया, this is 0, मतलब ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट आंसर। you can clearly see determinant of E is 0, correct। so this is how we can solve option B, right। now let's talk about the next option, option C। अब ऑप्शन सी तो आप देखो बहुत इजीली डायरेक्टली बोल सकते हो, कैसे, बिकॉज what is determinant of A raised to n when n is natural number, you can say determinant of A raised to n, ठीक है। n कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो डिटरमिनेंट ऑफ A टू पावर n, जैसे मान लो डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर है तो दिस इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ A क्यूब है तो क्या लिखोगे, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर 3, राइट। सो नाउ सी इफ यू टॉक अबाउट दिस इज यू कैन सी आपको ये प्रूव करना है, ये चेक करना है डिटरमिनेंट ऑफ E पावर EF पावर 3, सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ EF पावर 3 ग्रेटर देन डिटरमिनेंट ऑफ EF स्क्वायर, करेक्ट। एंड नाउ सी व्हाट इज दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ E into determinant of F greater than determinant of E into determinant of F whole square। अब ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं डिटरमिनेंट ऑफ E is 0, तो ये क्या हो गया, दिस इज 0।
ग्रेटर देन 0 विच इज नॉट करेक्ट आंसर, दोनों तो बराबर है, मतलब ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ई हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आपका ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई हो गया, सी रॉन्ग हो गया, ठीक है। यू कैन चेक दिस सिंपली, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस हमने वो यहाँ पे यूज किया, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन इज, you see, the option D says sum of diagonal entries of this matrix is equal to sum of diagonal elements of this matrix. Sum of diagonal element, that is, this is called trace of the matrix. Okay. So now see, let's talk about this matrix. We have P inverse E P plus F. Let's talk about this matrix. Okay. Now P inverse. Let's talk about P inverse. देखो, we have just proved that p square is equal to p, p square is equal to identity, ये हमने अभी प्रूव किया, राइट। अब you can भाई क्वेश्चन में अगर गिवन है कि p इनवर्स है तो ऑब्वियसली वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, आप चेक भी कर सकते हो p का डिटरमिनेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। p स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कैन आई से p इज इक्वल टू p इनवर्स। जस्ट ऑब्जर्व दिस, if you have p square is equal to I, if I multiply both sides with p inverse, अगर हम दोनों तरफ p inverse से multiply कर दें तो you'll get this p is equal to p inverse, correct? So now see, if I replace this is p inverse को अगर हम p से replace कर दें, this is p e p plus f, correct है? What we have done is p inverse is equal to p, क्योंकि p square identity matrix है, और p स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो हमने इसको दोनों तरफ p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं एक बार दिखा देता हूँ, p इनवर्स p इज इक्वल टू p इनवर्स आइडेंटिटी, और p इनवर्स p स्क्वायर, सॉरी, तो ये p इनवर्स इनटू p एक आइडेंटिटी बन जाएगा और ये p आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू p इनवर्स। और वैसे भी आपको बताइए, देखो p इनटू p अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो a इनटू b इज आइडेंटिटी, दैट मींस वन इज इनवर्स ऑफ अदर, अगर उनका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे टू से दिस। Now we have already proved that PEP is equal to F. So what is this value? This is equal to 2F. Correct? तो मतलब ये जो मैट्रिक्स है, this matrix is equal to 2F. ये मैट्रिक्स 2F के बराबर, ठीक है? So what is the you can say sum of diagonal elements? ये diagonal elements है 1, 18, 3 और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो because 2F मैट्रिक्स है, यहाँ तक क्लियर, राइट? Now we have to prove that sum of diagonal elements of this is equal to sum of diagonal elements of this. तो अब वो चेक कर लेते हैं, मतलब अभी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, this is E plus P inverse E FP। अब इसको हम चेक करेंगे, तो सेम you can see this is E plus P FP, क्या किया, this is P FP। What we have done is P inverse को हमने P से replace कर दिया, correct? Now see, we have proved again that F is PEP. So now see, this is F. F matrix is PEP. This is PEP और ये P. And now you see, ये क्या हो गया? This is E plus P square is identity matrix. ये हम already बोल चुके हैं. P square is identity matrix, तो ये P square identity matrix हो गया, तो identity into E into identity, मतलब ये E के बराबर ही आ गया, so this is E. So what is this matrix? This is equal to 2E, तो ये क्या हो गया, 2E matrix के बराबर आ गया। And now if you find the sum of diagonal elements of this matrix and this matrix, तो आप ध्यान से देखो, what is the diagonal element? What are the diagonal elements? This and this. और दोनों मैट्रिक्स E और F में यू कैन से डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, मतलब एडिशन विल बी सेम, उनका बस पोजीशन चेंज हुआ है बट एलिमेंट्स तो सेम ही है, मतलब दोनों वैल्यूज बराबर आएंगे इनका एडिशन, तो मतलब द डायगोनल एलिमेंट्स का सम फॉर दीस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? ए बी डी। सो नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जेईई एडवांस क्वेश्चंस कि नो वन विल गिव यू अ क्वेश्चन जहां आप सोच नहीं सकते हो, तो उसके लिए देखो क्वेश्चन में ही उन्होंने हिंट दिया है आपको, आपसे पहले प्रूव करवाया, देन यू हैव टू यूज दिस थिंग इन अदर ऑप्शंस। सो दिस इज वन वेरी वी कैन से वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस, ठीक है। वो
abruptly कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं देंगे. They will ask you to prove something and then you can use those things in the question. Okay, so I hope you understood this question. The first part was easy, and how to use that first part in the other option, that is what you have to understand here. Okay, so that's it for this video. Thank you. Bye bye.